Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. Like we have already told you in the last class that we will have a screen recording of the things that we have already have in the chapter of word processor, and we will try to show you that the practical demonstration that how to work in word processor. You all know that in word processor, in this chapter we are going to start, or we are going to discuss writer. A writer is an application of OpenOffice package. As you can see in this screen, I have already opened the package called OpenOffice. Normally, when you want to install or when you want to download the software, you can easily get it. It's free of cost. We are not here, we are not talking about Microsoft Office. We will discuss all the steps that is based on OpenOffice. OpenOffice is an open source package in which all the applications are completely free of cost. So here we will talk about writer. What is writer? Writer is an application of word processor or an example of word processor. So we have already discussed that what is a word processor, what are the features, what are the different components of writer. Then we have discussed some basic theoretical portion which has to be discussed in theoretical portion way only. Now let's move into the practical portion or how to work on writer. Before I start, I want to show you that when we install, it appears like this. I have just kept my pointer over there. OpenOffice. This is the latest version. Though I will give you the link through WhatsApp or in Google Classroom, you can just get the software. If you don't have, you want to download, you can get it. The moment you will double click it, it will open and it will appear like this. Now, this is the screen that you will get once the OpenOffice is open. As you can see, we have all the application which we can use, whether it is text, whether it is spreadsheet, whether it is presentation, whether it is database. You know that what we are going to open. We will open text document. So the moment you will click in text document, we will have another window and that will appear like this. Maybe this is not the same window that you have in your book because of the changes in the version. पेज नंबर 134 पे आपका जो बुक में है उसे थोड़ा सा आपको लेआउट डिफरेंस दिख सकता है, but I will try to explain you each and everything properly. Now over here you can see the entire area which we are having in the center. This is the workspace where actually we are working. ये टॉप का जो बार है ये है टाइटल बार, ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, ये सब मेन्यू बार, और बाकी ये सब टूल बार है. किसी को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, किसी को हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं. नॉर्मली जो ये नीचे का है ये आपको डिफॉल्ट 12 साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट का ऑप्शन जितने भी दिख रहे हैं सारे कुछ क्या है आपका, ये स्टैंडर्ड टूल फॉर्मेटिंग टूल बार है. अब बात करते हैं कि काम कैसे करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट से. पेज नंबर 135 पे आ जाइए आप. टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, you can go through your book in parallel while you're going through my video, so you can get it in much better way. File में जाएंगे, we'll go to new, and new only we have again all the options. Now we will click in text document. This is what you will have. Now this window is basically an additional dialog box or additional window which pop up once you open the text document. इसमें कुछ कुछ और सेटिंग्स के ऑप्शंस आपको दिखते हैं. तो इस तरह से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसका शॉर्टकट भी है कि Ctrl+N प्रेस करके भी आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू. Now before we start anything or before we start working on anything like saving, opening, I want to write something, and instead of writing I have already just opened another document in Word. I thought let's copy and paste it over here. I have selected it, copy, and right click, paste. Okay, now you can see I have already purposely I have just pasted it so I can explain you all the feature which is there given in the book. Now this is something which is already
uploaded in the website, a kind of notice to your parents regarding the minimum or minimized use of smartphone for while not compromising with the online classes. Okay, let's move to the next topic. तो ये एक नया डॉक्यूमेंट है, मान के चलिए मैंने अभी टाइप किया है. अब उसके बाद है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. अब ये तो हो गया क्रिएट करने का, लेकिन एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको सेव करना पड़ेगा. दो आई हैव नॉट सेव्ड एनी डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, टू सेव ए डॉक्यूमेंट विथ ए न्यू नेम. उसके बाद ओपन पे देखेंगे. तो फाइल पे जाएंगे. अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन है और एक सेव एज का ऑप्शन है. सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, क्लास 8 में भी आपको एक बार जरूर बताया गया होगा, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले सेव के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज. ठीक है, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे एक फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा जो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है अनटाइटल्ड वन. नॉर्मली एमएस वर्ड वगैरह में आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट करके दिखता है. आप इसमें कुछ भी नाम सेव कर दीजिए. लेट मी सेव इट विथ डेमो क्लास 9. उसके नीचे देख सकते हैं ओडीएफ टेक्स्ट, उसके ब्लैंक एक्सटेंशन है .odt. odt is basically the extension of open office writer document. odf का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्योंकि ओपन ऑफिस का पैकेज है तो कोई भी डॉक्यूमेंट का जो एक कॉमन फॉर्मेट है जो सारे प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है, इसलिए ओडीएफ इंक्लूडेड है. बट एक्चुअली में अगर आपको पूछा जाए इसका एक्सटेंशन क्या है, तो इसका एक्सटेंशन क्या है .odt. ये सेव कहाँ हो रहा है? माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में. लेट मी गेट इट सेव इन डॉक्यूमेंट ओनली. सेव में क्लिक कर देंगे. जैसे आप सेव में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका अनटाइटल 1 है, ये चेंज हो जाएगा डेमो क्लास 9 पे. ये एक सेव हो गया. ठीक है, अब आप इसको देखना है कि ये नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. इसके लिए इसको एक बार क्लोज करते हैं, नया डॉक्यूमेंट पे जाते हैं. ठीक है, नया डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इसको अगर आपको ओपन करना है, लेट मी क्लोज दैट एप्लीकेशन इन द बैकग्राउंड. ओके, हाँ, यस. गो टू फाइल, गो टू ओपन. शॉर्टकट्स देखिए आप सभी फेमिलियर है. न्यू के लिए कंट्रोल+N, ओपन के लिए कंट्रोल+O, सेव के लिए कंट्रोल+S. ये 3 बेसिक स्टेप्स है या बेसिक शॉर्टकट है जो मोर और लेस सभी में कॉमन रहते हैं. ठीक है, नाउ इन डॉक्यूमेंट यू हैव मेनली there are different document that you are getting over here. Now we have to find out which document actually we have saved just right now. So you can just see demo class 9. This is what we have, demo class 9 which we have just saved now. I want to open it. उसको select कीजिए नॉर्मल. ये प्रोसेस आप लोग मोर लेस सभी लोग इससे फेमिलियर है कैसे ओपन करते हैं. एंड क्लिक इन ओपन. आपका डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा. तो इस तरह से हम लोग नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. फाइल में जाकर सेव करते हैं एंड गो टू फाइल एंड ओपन, देन टू ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल, देन टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट. यहाँ पर आपका मेन्यू बार के बगल में भी एक क्लोज बटन रहता है. लेट मी चेक, इट शुड बी देयर. यस, देखिए ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने खोला. इसको मैक्सिमाइज जब आप करते हैं तो इसका मेन्यू बार का क्लोज बटन आपका गायब हो जा रहा है. ठीक है, let me check once again, sorry. Yes, so basically there is no such changes. When you want to close the document you can simply click the close button just beside to the menu bar, right at the right corner of the menu bar. Now what is actually I'm trying to say, I was expecting a menu close button just in the right side of the menu bar, but we don't have it over here. Let's continue with the same. इसका क्लोज बटन, इससे आप सभी मोर और लेस फेमिलियर है. इसका क्लोज बटन को क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा. तो ये तो हो गई ये बेसिक चीज़ों के बारे में. मैं फिर से उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ. इसके बाद है टू प्रीव्यू. प्रीव्यू के लिए क्या स्टेप्स है? गो टू पेज प्रीव्यू ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू. फाइल पे चलते हैं और नीचे देखिए पेज प्रीव्यू है, नीचे से चौथे ऑप्शन पर गो टू. This is the print preview, the miniature view of your document, that how document will appear after printing in a hard copy. So this is the view of a file before it's getting printed. इसे यहाँ से close कर सकते हैं print preview को.
Then we have to print a document. This is something very important. We go to the print option. But from which menu? From फाइल मेन्यू ओनली. देखिए फाइल पे गया, प्रिंट पे गया. जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा. ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसको अच्छे से समझिए. दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव एज ए प्रिंटर. क्योंकि इस फिलहाल इस लैपटॉप में कोई भी प्रिंटर्स का ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी नेम ऑफ प्रिंटर. ये बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंगली रिएक्ट या एक्ट करते हैं. यहाँ पर कितने सारे पेजेस चाहिए, मान लीजिए मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट है तो ऑल पेजेस से आप जा सकते हैं अगर सारे पेजेस को प्रिंट करना है. मान लीजिए 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या आपको सिलेक्टेड पेज निकालना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस. अगर आप प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर आप उसको आगे पीछे निकालना चाहते हैं तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं. कितनी कॉपीज निकालनी है आपको, ठीक है. अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो 1 बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, 2 कॉपीज चाहिए तो 2. इस तरीके से आप काम कर सकते हैं. और भी कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं पेज लेआउट में, आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, जो सेटिंग्स के लिए आपके पेज को ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने के लिए यूज़फुल होते हैं. बट वी विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट देम. क्या है आपको इन जनरल सेटिंग्स में कि ये प्रिंटर चूज़ करना पड़ता है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का पेज सेटिंग्स सेट करना पड़ता है, कौन सा पेज प्रिंट चाहिए ये सेट करना पड़ता है. आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी और कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू कैन चूज एनी टाइम. ओके, सो दिस इज द प्रिंट डायलॉग बॉक्स. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को एडिट कर सॉरी सेव करते हैं, ओपन करते हैं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स कैसे यूज करते हैं. इसके बाद पेज नंबर 138 पे क्या है, एडिटिंग टेक्स्ट. एडिटिंग टेक्स्ट में एक टेबल दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. एक कैरेक्टर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कंप्लीट पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर. ड्रैग द माउस ओवर द कैरेक्टर. जैसे आपको मान लीजिए कैरेक्टर डियर पेरेंट्स का डी सेलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली माउस को ड्रैग करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा. अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड के लेफ्ट में सॉरी सबसे लेफ्ट पोजीशन पे कर्सर को रखिए, डबल क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा. माउस से आप डबल क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग पे. ठीक है, जैसे ये पेरेंट्स का पी के मैंने कर्सर रखा, डबल क्लिक किया, पेरेंट्स इज सेलेक्टेड. दिस इज हाउ ए वर्ड इज सिलेक्टेड. लाइन को सिलेक्ट करना अगर है तो क्या करते हैं हम लोग शिफ्ट बटन का यूज करते हैं और एरोज की का यूज करते हैं. तो ये आपको पता चलेगा नहीं. शिफ्ट के लिए मैं अभी फिलहाल शिफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ. अभी देखिए यू के पहले कर्सर ब्लिंक कर रहा है. शिफ्ट के बाद मैं एरो की का यूज करूंगा. मैं अभी राइट एरो की यूज कर रहा हूँ तो मेरा ये वर्ड सेलेक्ट होता जा रहा है जहाँ तक मैं चाहूँगा. अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं डाउन एरो की को सेलेक्ट करूंगा. अगर मुझे अनसेलेक्ट करना है तो मैं टॉप एरो की को सेलेक्ट करूंगा. एरो की जो आपका लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में दिखता है आपको, उसका यूज करना है. पैराग्राफ. क्लिक 4 टाइम्स एनीवेयर इन द पैराग्राफ. मान लीजिए एक पैराग्राफ है, ये आपका पैरा है एज यू नो से लेकर स्टूडेंट्स तक. इसमें बोल रहा है इसको पूरा सेलेक्ट करना है. तो क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन में कि इस पैराग्राफ में आप कहीं पर भी 4 बार क्लिक कीजिए लगातार, 1 2 3 4. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सी दिस इज अ पैराग्राफ, दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस. ये जैसे पैराग्राफ, इसको आपको सेलेक्ट करना है, 4 टाइम्स क्लिक, इट विल गेट सेलेक्टेड. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने सॉरी सिंगल कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए माउस को ड्रैग करते हैं, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए 4 टाइम्स क्लिक करते हैं माउस पे. एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर माउस से करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरह से नीचे जाकर, और अगर शॉर्टकट में करना है तो सभी को पता है CTRL प्लस ए, इस तरीके से भी कंट्रोल प्लस ए फॉर एप्पल, कंट्रोल प्लस ए. रेक्टेंगुलर एरिया में सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस ड्रैग ओवर द एरिया. अगर आपको रेक्टेंगुलर एरिया में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप ऑल्ट का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, देखिए ऑल्ट का बेसिकली इसमें कोई बेसिक डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा. नॉर्मली आप बाकी ऑप्शंस का यूज करेंगे तो आपको काम समझ में आ जाएगा. इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8. लेट मी ट्राई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8. I don't find any difference with this shortcut. You can go for other options only.
देन वी हैव टू सेलेक्ट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट, मतलब आपको अलग अलग जगह सेलेक्ट करने हैं, एक ही जगह आपको टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट करने हैं। तो कंट्रोल का यूज हम लोग करते हैं, CTR को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं और अपना काम करते हैं जैसे जैसे सेलेक्ट करना है। देखिए मैं अपने फिलहाल में कंट्रोल को प्रेस करके रखा हूँ और मुझे जहाँ जहाँ सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल B एक शॉर्टकट यूज़ किया बोल्ड करने का, ये सिलेक्टेड वर्ड बोल्ड हो गए। तो इस तरह से नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट यानी अलग अलग जगह टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए, उसको छोड़ना नहीं है और अपना माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट इंसर्ट अगर करना हो तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप सभी को पता है, नॉर्मली माउस को क्लिक करते हैं, जहाँ पर माउस ब्लिंक कर रहा है वहाँ पर आप टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको नया कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए कि आप इसमें आपको समझ में ना आए। ठीक है, जहाँ पर भी आपको टाइप करना है कर्सर को रखिए और टाइप करना स्टार्ट कीजिए, कर्सर ब्लिंक करेगा आपका वहीं से टाइप होगा। टू डिलीट ए कैरेक्टर और ए वर्ड, नॉर्मली डिलीट करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं कि इसको जैसे ग्रुप्स को हटाना है तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ग्रुप्स हट जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें अभी मुझे मान लीजिए यहाँ से अपने राइट साइड के कैरेक्टर को हटाना है, जब भी आप बैक स्पेस का यूज करते हैं वो अपने प्रीवियस कैरेक्टर को डिलीट करता है। ठीक है, और अगर आप डिलीट का यूज करते हैं तो अपने नेक्स्ट कैरेक्टर सक्सेसर कैरेक्टर को डिलीट करता है। जैसे अभी मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, देखिए क्या डिलीट कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको, अपने लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं अभी यहाँ पर रख के मैं डिलीट बटन दबाता हूँ, देखिए क्या डिलीट हो रहा है, अपने राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, बैक स्पेस से अपने लेफ्ट के कैरेक्टर को डिलीट करता है वो, और डिलीट से अपने राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। अब आ जाती है अंडू और रीडू, इसके बारे में मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है क्या क्या है ये अंडू और रीडू। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ रांची इज माई सिटी, मैंने टाइप किया। ठीक है, मैं अंडू करना चाहता हूँ, अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z, सिटी हट गया, देखिए माई हट गया, इज हट गया, अभी मैं Ctrl+Z ही प्रेस कर रहा हूँ, अभी और Ctrl+Z प्रेस करेंगे इसके पहले जो था वो आता जाएगा। तो Ctrl+Z यानी अंडू का मतलब है क्या, टू रिवर्स द एक्शन एग्जीक्यूटेड, सॉरी टू कॉल बैक द एक्शन एग्जीक्यूटेड प्रीवियसली, लास्ट कॉल बैक, जो लास्ट एक्शन आपने एग्जीक्यूट किया उसको रिवर्स करना। ठीक है, अब मैं रिडू करना होगा यानी Ctrl+Y, तो वो क्या करेगा, टू रिवर्स द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अंडू, यानी अंडू ने जो किया उसको दोबारा सुधार देना। देखिए फिर से बता रहा हूँ, अंडू जब करते हैं तो अंडू क्या करता है, लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन को कॉल बैक करता है। ठीक है, और रीडू क्या करता है, अंडू का रिवर्स काम करता है। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग पे मैंने जैसे कहा, जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कहीं ब्लैंक जगह पर, डियर पेरेंट्स के नीचे पे, अभी डियर पेरेंट्स के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम सुरेंद्र नाथ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये एक नया एक्शन है, मैं अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखिए, क्या कर रहा है ये, कॉल बैक द प्रीवियस एक्शन, यानी पहले जैसा था वो उसको ऐसा ला देगा। लेकिन अब मैं फिर से रीडू कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, देखिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू, अंडू एंड रीडू। टेक्स्ट को कॉपी करना और मूव करना, ये समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी इजी फॉर एनीवन कि कैसे कॉपी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको टेक्स्ट को उठाना है और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे डालना है, तो जब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपिंग टेक्स्ट। और मान लीजिए ये टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करके आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो दिस इज कॉपिंग टेक्स्ट। लेकिन इसी टेक्स्ट को, मान लीजिए इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके मूव करना चाहते हैं यानी हटाना चाहते हैं तो कट पेस्ट, हट जाएगा वहां से, और जहां डालना चाहते हैं वहां आ जाएगा। तो कॉपी पेस्ट मीन्स द टेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग इन बोथ प्लेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इन मूविंग टेक्स्ट द टेक्स्ट इज अवेलेबल ओनली इन डेस्टिनेशन, वो सोर्स से हट जाता है और डेस्टिनेशन पे चला जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। ठीक है, कोई वर्ड हो उसको हम लोग किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो इसी डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड हम लोग देखते हैं जो वर्ड रिपीट किया हो, लेट मी चेक, आई थिंक पीसी,
Okay, I am getting only two word, uh, that is normal, quite repetitive. PC, मोबाइल भी एक वर्ड है जो रिपीट कर रहा है बार बार, देखिए मोबाइल वर्ड, उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए मैंने शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच बताया था। लेट मी चेक वेदर इट विल वर्क इन राइटर और नॉट। नो, इट इज नॉट वर्किंग। तो इसके लिए शॉर्टकट्स है, देखते हैं हम लोग, पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन द फाइंड एंड रिप्लेस बटन फ्रॉम द एडिट मेन्यू। एडिट में जाइए, फाइंड एंड रिप्लेस आपको दिखेगा, यस, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। ये राइटर में सिर्फ कंट्रोल प्लस एफ है। इसमें जाइए, सर्च फॉर, मैं टाइप कर रहा हूँ मोबाइल, रिप्लेस विथ, इसको टाइप क्या करें, स्मार्टफोन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है मैच केस, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एज इट इज टाइप होना चाहिए, ठीक है। और आपका होल वर्ड्स ओनली, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट चेक फाइंड ऑल, देखिए ये हाईलाइट होगा, जहाँ जहाँ पर मोबाइल है वो फाइंड करेगा। मैच केस मैंने क्लिक नहीं किया तो स्मॉल लेटर वाले को भी हाईलाइट करेगा। रिप्लेस और करता हूँ, सर्च की रिप्लेस 7 times, so mobile was used 7 times in the document। अब आपको मोबाइल का ही नहीं दिखेगा, सब मोबाइल क्या बन गया, स्मार्टफोन, like you can see here। So this is the use of smartphone। Then we have jumping to the page number। jumping to the page number के लिए एक शॉर्टकट है F5 की। F5 जैसे प्रेस करेंगे तो आपको देखिए नेविगेटर स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पर से आप पेज नंबर जंप कर सकते हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट 2 ही पेज का है, 2 ही पेज जंप कर सकते हैं, 3 पेज का है ही नहीं, तो कहाँ से होगा जंप। चलिए, तो इस तरह से आप जंप कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट है, F5। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया था। ऐसे कैरेक्टर दोज हु आर नॉट displaying in the printed document, they just appear uh, only when we are activating them or when we are enabled them, otherwise they are not। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जैसे कि इंटर की, स्पेस बार की, टैब की, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए, जैसे मैं इसी डॉक्यूमेंट में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर देखना चाहता हूँ, तो इसका शॉर्टकट क्या बता रहा है आपका बुक, कंट्रोल प्लस F10। तो देखिए कंट्रोल प्लस F10 जैसे प्रेस करेंगे तो ये सब कैरेक्टर जो दिख रहा है ये सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ये इंटर बटन है सब, जो आपको एक रिवर्स में पी दिख रहा है, पी के शेप में, ठीक है। स्पेस बार वगैरह भी डॉट के साथ आ गए हैं, देखिए हर वर्ड के बीच में एक डॉट से, अगर आप देख नहीं पा रहे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लेट मी जस्ट जूम इट। देखिए हर वर्ड के बीच में एक डॉट दिख रहा है आपको, और जितने भी इंटर के बाद यहाँ पर यूज किए गए हैं इंटर बटन, जहाँ जहाँ वहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, देखिए मैंने टैब यूज किया, क्या आ रहा है, एक एरो आ रहा है, इंटर यूज किया, देखिए एक की शेप में आया, तो ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। तो इसके बाद आ जाता है आपका, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पहले से काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑटो स्पेल चेक से कोई भी वर्ड ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। इसमें जैसे राइट क्लिक में स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे जाइए आप, कुछ भी नहीं है। So this is something which I thought I will get it over here, line spacing, paragraph spacing, ठीक है। Let me type something, hello everyone, गलत टाइप करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, प्रोग्राम नहीं, सॉरी, लेट मी टाइप ऑर्गेनाइजेशन, सब सही टाइप क्यों हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। So spelling grammar check option should come when I click here, right click, let me check with another document, sorry for the inconvenience, okay। Rachi is very, यहाँ पर टाइप किया कुछ, हाँ देखिए ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, इग्नोर, तो ये इग्नोर करेगा रेड वेवी लाइन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यों है, क्योंकि ये रांची वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं है। इग्नोर ऑल करेंगे तो जितनी बार रांची आएगा इस डॉक्यूमेंट पे वो सारे को रांची को इग्नोर कर देगा,
मतलब उसमें रेड वेवी लाइन दिखेगा नहीं। हालांकि इसको आप प्रिंट करेंगे तब भी कुछ दिखेगा नहीं। ऑटो करेक्ट करेंगे तो अपने हिसाब से वो ऑटो करेक्ट कर लेगा, या ऑप्शंस में से कोई भी ले लेगा। तो है भी नहीं एक सही, इसको दिमाग लगाना नहीं है। स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे तो एक अलग विंडो ओपन होगा, तो दिख रहा है आपको, सजेशंस दे रहा है कि रांची की जगह पर ये हो सकता है, जो कि एक भी सही नहीं है। उसके डिक्शनरी के हिसाब से जो सही लग रहा है वो आपको बता रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि किस लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, ये यूएसए के इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। इग्नोर वंस करेंगे तो रांची एक बार इग्नोर होगा और एक बार आएगा, तो कम स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। इसमें अगर आप फिर से टाइप करना चाहते हैं, मैं फिर से देखता हूँ। देखिए आया, राइट क्लिक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इग्नोर वंस इग्नोर ऑल मैंने समझा दिया आपको। इग्नोर वंस में आप एक बार डॉक्यूमेंट में अगर एक बार है तो एक बार हो जाएगा, अगर मल्टीपल टाइम यूज हुआ है सेम वर्ड तो सारे बार वर्ड में कोई भी रेड वेवी लाइन दिखेगा नहीं, सारे वर्ड से हट जाएगा। मतलब रांची अगर मल्टीपल टाइम यूज किया है तो सारे से हट जाएगा। अगर उसको आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, रांची वर्ड में अगली बार नहीं दिखेगा कुछ भी। चेंज ऑप्शन से आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो जो आप वर्ड सेलेक्टेड है उस वर्ड से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रांची मल्टीपल टाइम यूज किया है, आपने चेंज ऑल कर दिया, तो जो वर्ड यहाँ सेलेक्टेड दिख रहा है हाईलाइटेड में, वो सारे वर्ड्स चेंज हो गए, ऐसा इस तरह से हो जाएगा चेंज ऑल में। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में वो अपने हिसाब से जो भी उसको ऑटो करेक्ट जो मैंने दिखाया आपको लास्ट टाइम पे, वही ऑप्शन होगा जो उसका ऑप्शन पे दिख रहा है ऑटो करेक्ट में। ये सारे ऑप्शन में कोई भी एक आप जो चूज करेंगे वो ले लेगा। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज, चेंज ऑल। आई होप सारे ऑप्शंस जो हैं आपको समझ में आ गए। नहीं आए, ओपन ऑफिस इंस्टॉल कीजिए, काम कीजिए, तब बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज मैं आपको कितना भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा, सब टाइम पास होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द डे। जो भी आपका असाइनमेंट है आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।